Hello students, how are you? I hope you all are doing good बच्चों. So today we are going to start new chapter with me. Its title is related to pronouns. So start करते हैं बच्चों. ये प्यारा सा चैप्टर है जो रिलेट कर रहा है प्रोनाउंस से. So objectives in focus में काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, एग्रीमेंट्स ऑफ नाउन्स विद प्रोनाउंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So get set में बच्चों, कलर द बॉक्सेस दैट कंटेन अ प्रोनाउन, जिसमें आपने कलर करना उन बॉक्सेस को जिसमें प्रोनाउन है. लाइक कंप्यूटर क्या बच्चों एक प्रोनाउन है? नहीं. और मी एक प्रोनाउन है? यस. सो मी को आप कलर करेंगे. इसी तरह इट में कलर करेंगे, यहाँ पर हिम में कलर करेंगे, ये भी प्रोनाउन है बच्चों. और प्रोनाउन को फाइंड आउट करते हुए आप यहाँ पर कलर करने वाले हैं. देन नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग कॉर्नर्स की प्रोनाउंस क्या होते हैं एग्जैक्टली और कहां पर यूज किए जाते हैं. सो प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. वी डू दिस टू अवॉइड रिपीटेशंस व्हेन वी स्पीक और राइट. द चिल्ड्रन कैन easily understand this when introduced to such sentences as John said that John could not come for the practice because John's fathers had not bought John a new pair of training shoes. The above sentences sounds awkward as the noun John is repeated. The children can easily see that such a sentence can be written as John said that he could not come for the practice because his father had not brought him a new pair of training shoes. The words बच्चों आपने जो देखा he, his and him have replaced the noun John. Therefore they are pronouns, क्योंकि noun की जगह पर इन words को लगाया गया है, इसलिए इनको बोलेंगे pronoun. Then बच्चों kinds of pronoun क्या होते हैं कि pronoun कितनी तरह के होते हैं. There are many kinds of pronouns. Let's learn some of them बच्चों. So personal pronoun. First we will start from the personal one. Pronouns that stand for persons or things are called personal pronouns. Personal pronouns stand for three persons. The pronouns I, me, we and us are called pronouns of the first person. They are used for the person who speaks. The pronoun you is called pronouns of the second person. It is used for the person spoken to. The pronouns he, him, she, her, they, them and it are called pronouns of the third person. They refers to the person spoken of. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से यूज किए जाते हैं. अ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस acts as the subject of a sentence. Example, the subjective pronoun performs the action of the verb. They are he, I, it, she, they, we and you. For example, he spends a lot of time studying for the exam. On Sunday, she and I will go to the mall. Next चलते हैं बच्चों objective pronouns की तरफ. An objective pronouns acts as the object of a sentence. Example, it receives the actions of the verb. The objective pronouns are her, him, it, me, them, us and you. For example, she waved at me. Rahul gave her the flowers. Next है बच्चों below is the table with the different forms of subjective and objective pronouns, जिसमें हमें समझाया गया है बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बेस पर सिंगुलर में, और ऐसे ही बच्चों प्लूरल के बेस पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन में बच्चों सब्जेक्ट में यूज किया जाता है आई को, ऑब्जेक्ट में मी को. सेकंड पर्सन में यूज करेंगे बच्चों यू को और ऑब्जेक्ट में यू का यू ही रहेगा. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट यूज करेंगे एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बेस पर, और हिम, हर, इट ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे एज अ सिंगुलर. बट प्लूरल में आते ही बच्चों हम देख रहे हैं कि वो एक से ज्यादा हो गए, जिसमें वी का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन में प्लूरल के बेस पर और ऑब्जेक्ट में उसका यूज करेंगे अस को लेकर. देन सेकंड पर्सन में यू यू ही रहेगा प्लूरल में और दे चेंज हो जाएगा बच्चों दैम में. रिमेंबर फोर एवर पॉइंट्स में बच्चों the personal pronouns you and it stay the same whether used as subjective or objective pronouns. So pick out the personal pronouns from the following sentence and say which class they belongs to, first, second and third person. So यहाँ पर बच्चों आपने पर्सनल प्रोनाउन को देखना है, फाइंड आउट करना है सेंटेंसेस में से, और यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है. मीन्स फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन. तो यहाँ पर आप पहले बच्चों प्रोनाउन को छाटेंगे. वी यहाँ पर प्रोनाउन है और प्रोनाउन है, तो वी जो है बच्चों यहाँ पर हमारा यूज होता है फर्स्ट पर्सन में, तो आप फर्स्ट पर्सन लिखेंगे. और आर यूज होता है एज अ ऑब्जेक्ट में ही हम यूज करते हैं प्लूरल बेस पर, ऑब्जेक्ट बेस पर. देन रिमेनिंग पार्ट्स को भी कंप्लीट करना है. नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं बच्चों जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. Pronouns that are used with self or selves to reflect the actions of the verb on the subject are called reflexive pronoun. For example, let us do our work ourselves. He went to Mumbai himself. Self is added to a singular pronouns and selves to a plural pronouns. Remember, reflexive pronouns are used as objective.
ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फिल करना है बच्चों। यहाँ पर आपको व्हाई डजंट शी डू इट, सो यहाँ पर बच्चों व्हाई डजंट शी डू इट, तो शी का क्या होता है बच्चों, हर सेल्फ, तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर यूज कर दिया। सेम एज इट इज औरों को भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन टू शो पोजेशंस और ओनरशिप आर कॉल्ड द पॉजेसिव प्रोनाउंस। माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट, आर्स एंड देयर्स आर सम कॉमन पॉजेसिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, इज दिस बुक योर्स, दैट कंप्यूटर इज हर्स। So remember forever we never use an apostrophe in possessive pronouns। तो यहाँ पर कभी भी बच्चों apostrophe यूज नहीं करना। Like subjective pronouns और objective pronouns, और साथ में बच्चों possessive pronouns के बारे में आपको बताया गया है। Like subjective है बच्चों I, then me और mine रहेंगे objective और possessive। ऐसे you, yours, he, him, his, she, her, hers, it, its, we, us, ours, they, them, theirs। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स गो बिफोर द नाउन एंड द पॉजेसिव प्रोनाउंस गो आफ्टर द नाउन। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय कार, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव बच्चों। इज दैट योर पेन, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव ही। देन दिस कार इज माइन, ये है प्रोनाउन बच्चों, पॉजेसिव प्रोनाउन। एंड इज दैट पेन योर्स, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इनको पहचानेंगे और फाइंड आउट करते हुए राइट डाउन भी करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों सम कॉमनली यूज्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स की कहां पर ये कॉमनली यूज किए जाते हैं, पर्सन्स के बेस पर, और पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। फर्स्ट सिंगुलर माइन, माय। फर्स्ट प्लूरल बच्चों आर्स, आर। सेकंड में योर्स, योर। थर्ड में मेल कैटेगरी में हिज और हिज का यूज ही करते हैं बच्चों, पॉजेसिव में भी। देन थर्ड में फीमेल के बेस पर हर्स और हर यूज किया जाता है। थर्ड में न्यूटर, इट्स, और थर्ड में प्लूरल के बेस पर देयर्स और देयर का यूज करते हैं बच्चों पॉजेसिव केस में। देन रिमेंबर फॉरएवर में बच्चों यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड। पॉजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड विद नाउन्स और नाउन फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल, दोज आर देयर कार्स, ये है बच्चों इनकरेक्ट। हैव यू मेट माय फ्रेंड इज द करेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों देखना है आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस के बेस पर दोनों दिए गए हैं। देयर इज नो कॉमनली यूज्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस फॉर इट। द वर्ड्स इट्स एंड इट्स आर प्रोनाउंस्ड द सेम बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड यूज इन ग्रामर। क्योंकि एपोस्ट्रोफे के साथ बच्चों उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। लाइक यहाँ पर विदाउट एपोस्ट्रोफे दिया गया है बच्चों इट्स, तो ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज करेंगे। और दूसरा बच्चों जो दिया गया है इट्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन एपोस्ट्रोफे के साथ यूज करेंगे। ये दिखाता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर इट इज और इट हैज को। देन बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर पॉजेसिव प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में। इनकी हेल्प से बच्चों आप इन सभी सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है रिया ड्रू अ पेंटिंग, द पेंटिंग इज। अब रिया ने बच्चों पेंटिंग ड्रू की है तो उसकी पेंटिंग कैसी है, तो यहाँ पर माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स, तो यहाँ पर आएगा हर्स। द पेंटिंग इज हर्स। देन रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करते रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं बच्चों, ऐसे प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर कॉल्ड demonstrative pronouns. For example, this is a parrot, these are dogs, that is a sheep, those are donkeys. The words in color in the sentences above point out things. This and these refer to things lying closer at hand. That and those refers to things lying at a distance. These words are demonstrative pronouns कहलाते हैं। So fill in the blanks with correct demonstrative pronouns from the bracket बच्चों। यहाँ पर ब्रैकेट से लेते हुए वर्ड्स को आपने फिल करना है। Dash was his first performance. सो यहाँ पर दैट या दोज बच्चों, क्योंकि एक ही परफॉर्मेंस है तो हम लगाएंगे दैट। इसी तरह बच्चों औरों को भी कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स विच इज इन ब्रैकेट्स। नेक्स्ट है बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस, हु आर यू, whom do you want to meet, which is your school. Then the colored words in this sentence above are used to asking questions बच्चों, they are interrogative pronoun कहलाएंगे। अब इसी बेस पर एक्सरसाइज है जिसमें आप करेंगे चूज द करेक्ट interrogative pronouns from the bracket. Dash were you playing with, so यहाँ पर who या whose, so who were you playing with. Then बच्चों औरों को भी रिमेनिंग पार्ट्स को भी इसी तरह interrogative words यूज करते हुए कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट है बच्चों एग्रीमेंट ऑफ नाउन्स विद प्रोनाउंस. A pronoun and the noun it refers to must agree with each other. If the noun is singular, the pronoun that refers to should also be singular. For example, Akhil's watch is broken. It broke yesterday. If the noun is plural, the pronoun that refers to it should be in plural. For example, Ria and her sister share a strong bond. They go to school together. If the noun is masculine gender, the pronoun that refers to it should also be masculine gender. For example, Kian went to his class. He sat down on his desk. क्योंकि masculine के लिए masculine ही यहाँ पर यूज होगा बच्चों. If the noun is feminine gender, अगर बच्चों आपको noun मिल जाता है feminine gender में, the pronoun that refers to it should also be feminine gender. For example, Anaya saw the play. She liked it very much. If the noun in neuter gender, the pronoun that refers to it should also be in neuter gender. For example, Ishan has some coins. They are of great value. Asif had a stamp. It was priceless. जिसमें बच्चों now I know में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है पर्सनल प्रोनाउंस refers to either ourselves, the people we are talking to, or the people we are talking about. They may be used as subject or objects. A subjective pronouns act as the subject of a sentence. Example, the subjective pronouns performs the actions of the verb. And objective pronouns act as the object of a sentence. Example, it receives the actions of the verb. A reflexive pronouns is used to refer back to the subject of the sentence or clause. Possessive pronouns are used to replace a noun and to show possessions or ownership. Possessive pronouns go after a noun, unlike possessive adjectives which go before the noun. A demonstrative pronoun is used to point out the person or things we are talking about बच्चों. An interrogative pronoun is used to ask question. A pronoun and the noun it refers to must agree with each other. अब चलते हैं बच्चों प्रैक्टिस टू परफेक्ट पर, जिसमें एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम चैप्टर से रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन में आप करने वाले हैं टेक द करेक्ट आंसर. द प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेकंड पर्सन इज यू, ही, दे एंड आई. तो सेकंड पर्सन कहलाता है बच्चों यू, तो हमने किया यू के आगे टिक. इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स को भी कंप्लीट करते रहेंगे. नेक्स्ट है बच्चों सेकंड में, जिसमें आपने करना है एनसर्कल द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन इन द ब्रैकेट दैट will replace the underlying noun in the sentence. The first one is done for you as an example. जिसमें बच्चों फर्स्ट आपको करके दिखाया सेम एज इट इज. आप रिमेनिंग पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे. पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग, सो वी या दे. सो यहाँ पर हम लगाएंगे बच्चों दे. देन गर्ल के लिए हम लगाएंगे शी, एंड थॉमस एल्वा एडिसन के लिए हम यूज करने वाले हैं ही. इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे. अब चलते हैं बच्चों अप्लाई नाउ की तरफ. सो अप्लाई नाउ में एड द मिसिंग प्रोनाउंस इन दिस पैसेज. तो यहाँ पर बच्चों आपने मिसिंग प्रोनाउंस फाइंड आउट करने हैं और ऐड कर देना है. लाइक कनिका एंड राशि वर वेरी हैप्पी व्हेन दे गॉट टिकट्स फ्रॉम द इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच. डैश हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच. सो बच्चों आएगा दे हैड बीन. इसी तरह आपने और प्रोनाउन को भी यूज करते हुए पैराग्राफ को खुद से कंप्लीट करना है. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों वर्क टुगेदर की तरफ. मेक पेयर्स इन द क्लास. ईच पेयर विल पुट सम पर्सनल आइटम्स in a bag basket which is then placed on the teacher's table. Then one by one each pair walks to the teacher's tables and pulls out one object each. As each object is pulled out, the pair will identify whose object it is or isn't. For example, as a student pulls out a crayon, she may say, "This red crayon is mine." It isn't yours. The other students may say, "It is hers." The rest of the class will take part by saying, "It's not ours, it's hers." तो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे पेयर्स में बच्चों और क्लासमेट्स के साथ भी. तो बच्चों आई होप आपने चैप्टर को बहुत इंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, और इसमें जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो भी आप साथ में बच्चों जरूर कंप्लीट करेंगे.